आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी के मेन दो अप्रोचेस होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थियोरेटिकल। वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जैसे इवेंट ऑकर कर रहा है तो उसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और उन आउटकम्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस होती है जो हम लोग अभी देख लेते हैं। पहला होता है कि एक ट्रायल। अ ट्रायल इट मीन्स एनी एक्शन विच विल रिजल्ट इन one or several outcomes. For example, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, सपोज 1 रुपी कॉइन, और उसको हम टॉस करते हैं तो उसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है और उसको हम ऐसे थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। So any action, so these are all trials basically. Dice toss, coin toss, throw of a dice. And now let's move on to the definition of an event. An event is the collection of all possible outcomes of an experiment. So basically just like a trial में जैसे हमने डिफाइन किया कि कॉइन टॉस के लिए हेड्स टेल्स होता है, डाइस थ्रो के लिए 1 से 6 होता है, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ दैट। बेसिकली इट इज़ अ सेट with all the possible outcomes. So if we are tossing a coin, the event will be a set of heads and tails. If we are throwing a dice, the event will be a set of the numbers 1 to 6. And these are the basic definitions which you require to learn the experimental approach. Now let's move on to basically what exactly it means, experimental approach. So experimental approach probability, we call it as experimental or empirical probability. Experimental / empirical probability, which is defined as the ratio of number of trials in which an event occurs divided by the total number of trials. To realize this, हम फिर से कॉइन टॉस वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉइन को 500 बार टॉस किया। We tossed a 1 rupee coin 500 times. Out of that, suppose 226 were heads and the remaining 500 minus 226, 274 were tails. So according to this data, हमारे पास जो probability होगी, probability of finding heads, PE, this is the notation of expressing probability, where P means probability and E means the event for which we are finding the probability. In this case, E will be the probability of finding heads on a coin toss. So this will be the total number of trials in which the event occurs. मतलब कि जिस भी बार heads आया है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि heads 226 बार आया है, so numerator में 226 होगा and total number of trials will be जितनी बार हमने coin toss किया है, which we see as 500. So this will be the probability. Similarly, अगर हमें tails की probability निकालनी है
तो PE will be 274 divided by 500. Okay, this is the basic outline of the experimental approach. We will do some problems so that it helps you understand better. Suppose we are told that a dice is rolled not two. A dice is rolled 100 times. Out of that जितनी बार 1, 2, 3, 4, 5 and 6 आया उसके corresponding values टेबल में दी हुई है. So we get 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose 121 times आया 17, 3 came 15, 4 25. Let's see, 20, 20, 40, 60, 70, 78. We have 22 remaining. 10. ये हमारे पास डेटा है कि डाइस को हमने 100 टाइम्स रोल करने के बाद ये वाले स्पेसिफिक नंबर्स कितनी बार आए हैं. तो अगर हमें सपोज प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है किसी भी नंबर की, मान लीजिए P3, व्हाट विल इट बी. 3 कितनी बार आया? 15 बार. एंड हमने डाइस कितनी बार रोल किया? 100 टाइम्स. So P3 will be 15 by 100, that will be 0.15. Similarly, for each one we can find out. P1 will be 21 by 100, that is 0.21. P2 will be 17 by 100, 0.17. P4 25 by 100, 0.25. P5 12 by 100, 0.12. and last P6 10 by 100, 0.10. These are the empirical probabilities of the specific numbers occurring on the roll of a dice when a dice is rolled 100 times. Let's do another example. Now suppose that हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 1 रुपए के कॉइन्स हैं और दोनों को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है 50 टाइम्स. ना इसके हम लोग डिफरेंट आउटकम्स देखते हैं पहले. तो इसका इवेंट स्पेस क्या होगा? क्या हो सकता है? दोनों कॉइन्स में हेड जा सकता है, H. पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, एंड लास्ट दोनों में टेल्स. ये इसका इवेंट स्पेस है. दीज 4 कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड. नाउ हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 50 टाइम्स उन्हें टॉस किया गया एंड मान लीजिए हमें ये भी दिया हुआ है कि कौन सा कितनी बार आता है. सो हेड्स वी गेट सपोज 17, 10, 12, 11. ओके, तो अब हमें निकालना है, मान लीजिए P प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स occurs only one time. तो हेड कहाँ पे हम इन चार इवेंट्स में कहाँ पे हमें दिख रहा है कि हेड सिर्फ एक ही बार आ रहा है? इसमें और इसमें. सो P1H विल बी 10 + 12 बिकॉज इन दोनों में हेड्स एक ही बार आ रहा है
and it was tossed 50 times, so this becomes 22 upon 50, 0.44. Similarly, P अगर 1 tails होता तो अगेन वी सी दैट टेल्स एक ही बार इन दोनों में आ रहा है, तो टेल्स का भी सेम होता. P 2 heads या फिर P no tails, उसके लिए 17/50 होता, और P 2 tails या no heads के लिए 11/50 होता. ठीक है. सो दिस इज़ मेनली द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच.